Hello friends, welcome to my e-learning class. Today we are going to discuss about grammar section of class 10, direct and indirect speech, that means DS and IS. At first we have to discuss what is speech. The combination of words which expresses a complete meaning is known as speech. For example, Rama reads Ramayana. In this sentence, Ram is a word, reads another word, Ramayan another word. So the words Ram reads Ramayan are combined according to a particular rules and expresses a complete meaning. So this is called a speech. Then what is direct speech? We may report the speech of person directly, that is by repeating the actual words used by the speaker. This is called direct speech or narration, direct narration. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି କହିବା। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋପାଲ ସେଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍। ଗୋପାଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଦୟାକରି ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋପାଳର କଥାକୁ ଅବିକଳ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍, ଗୋପାଳ ସେଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍ କମା ରହିଲା, ତାପରେ ଉଦ୍ଧୃତି ବା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରଫ୍ ରହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ତାପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରଫ୍ ଶେଷ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବିକଳ କଥାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦୁ ସେଡ୍ ମେ ହେଭେନ୍ ହିୟର୍ ମାଇ କ୍ରାଏ। ଯଦୁ କହିଲା ହେ ଆକାଶ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ମୋ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିବ କି? ଏଇ କଥା ଯଦୁର ଅବିକଳ କଥା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ସେଇ ଡିରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ବା ନ୍ୟାରେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍? We may also report the speech of a person indirectly, that is by giving the substance of the words used by the speaker in our own words. This is called indirect speech. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବିକଳ କଥାକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କହିବା। ଯେମିତିକି ଗୋପାଳ ବେଗ୍ଡ ଦେମ୍ ଟୁ ବି କ୍ୱାଇଟ୍। ଗୋପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦୁ ପ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଭେନ୍ ମାଇଟ୍ ହିୟର୍ ହିଜ୍ କ୍ରାଏ। ସେମିତି ଯଦୁ ଆଶା କଲା ଯେପରିକି ହେ ଆକାଶ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟିକେ ଶୁଣ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁରୂପ କଥାକୁ ବା ଅନୁରୂପ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କହିବା। ଦେନ୍ we have to study the rules for turning a direct into indirect speech. ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ DSକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ISରେ ପରିଣତ କରିବା, ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଆମେ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ବା ନିୟମ ପଢ଼ିବା। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 1, the conjunction that or relative or conjunctive adverbs are generally inserted before the reported speech.
देख फ्रेंड्स डीएस लिखे आम गोटे वाक्य लिखा ये राम सेज ही इज इल द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच डीएस आकु जो आइस करवा राम सेज दैट ही इज इल ये कमा आउ उद्धृति उठी जाई मध्य कौन लगे दैट लगे तेणु आम जान नियम 1 रे गोटे कंजक्शन बा संयोजक रिपोर्टिंग भर्ब आउ रिपोर्टेड स्पीच कौन रिपोर्टिंग भर्ब देखिए राम सेज ये सेजटा है रिपोर्टिंग भर्ब आउ उद्धृति भितर जहाँ रहा है रिपोर्टेड स्पीच कहवा रिपोर्टिंग भर्ब आउ रिपोर्टेड स्पीच मध्य दैट और रिलेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब आम जोग करी दीटा को पार्ट को आम जोग करके आम आईएस बा इनडायरेक्ट स्पीच आम तैयारी करी परिबा। रूल नंबर 2 if the verb used by the reporter is in the present or in the future tense the tense of the verb of the reported speech should remain unchanged। देख जिते बड़े आम रिपोर्टिंग भर्बटा प्रेजेंट टेन्स किंबा फ्यूचर टेन्स थाए सेते बड़े रिपोर्टेड स्पीच रो भर्ब रो कौनसी परिवर्तन घटे नहीं। देख फॉर एग्जांपल राम सेज आई एम इल यहाँ हूँ डीएस देख रिपोर्टिंग भर्बटा कौन अच्छी सेजटा है प्रेजेंट टेन्स अच्छी रिपोर्ट स्पीचटा कौन अच्छी सेटा मतलब प्रेजेंट रे अच्छी को आईएस करवा राम सेज दैट ही इज इल राम सेज तापर दैट लगिला आई पाई ही है तापर ही अनुसार इज लगा आई रो रूप ही रो पर्सन आ नंबर अनुसार इज लगिला तापर वाक्य समाप्त होला। तेबे एटी कौन देखिले ना जेहेतु रिपोर्टिंग भर्बटा आमर प्रेजेंट टेन्स रे अच्छी आ रिपोर्ट स्पीचटा प्रेजेंट टेन्स रे अच्छी से कौन सी परिवर्तन घटो ना केवल कौन चेंज हम ना कंजक्शन जो दैट ताकू लगा हब एवं रिपोर्ट स्पीच रो कर्ता को चेंज कराई कि तार पुरुष वचन अनुसार बी भर्ब लगे। तापर एग्जांपल देख गोपाल विल से आई एम गोइंग देख व्हाट इज रिपोर्टिंग भर्ब विल से अच्छी रिपोर्टिंग भर्ब रिपोर्ट स्पीच कौन अच्छी आई एम गोइंग एटा प्रेजेंट एटा फ्यूचर टाइम रे अच्छी एटा हम चेंज करवा आईएस को कौन हम ना गोपाल विल से दैट आई चेंज हम ही तापर ही अनुसार इज बा पुरुष वचन अनुसार ही रो इज लगिला तापर गोइंग वाक्य शेष यह भाव आम रूल नंबर 2 देखिले। तापर देखिबा रूल नंबर 3 जिते बड़े रिपोर्टिंग भर्बटा पास्ट टेन्स थाए रिपोर्ट स्पीच रो प्रेजेंट टेन्स थिले ता कौन हो ना करेस्पोंडिंग पास्ट टेन्स हो जाए रिपोर्ट स्पीच फ्यूचर टाइम रे थिले ता कौन चेंज हो जाए करेस्पोंडिंग फ्यूचर इन पास्ट टेन्स हो जाए रिपोर्ट स्पीच रे पास्ट इंडेफिनाइट थिले ता कौन चेंज हो जाए ना पास्ट परफेक्ट हो जाए रिपोर्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस बा पास्ट प्रोग्रेसिव थिले ता कौन चेंज हो जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाए या रूल नंबर 3। तेबे हम एग्जांपल देखिबा राम सेड आई एम गोइंग देयर राम सेड आई एम गोइंग देयर यहाँ हूँ रिपोर्टिंग भर्ब यहाँ हूँ रिपोर्टेड स्पीच देख रिपोर्टिंग भर्बटा अच्छी पास्ट टेन्स रे अच्छी एवं रिपोर्ट स्पीचटा प्रेजेंट रे अच्छी से कौन हम ना रिपोर्ट स्पीचटा कौन हम चेंज हम ना पास्ट टेन्स को हम चेंज करवा तेरे कौन हम चेंज कले ना राम सेड दैट ही वाज गोइंग देयर आ गोटे एग्जांपल देखिबा राम सेड आई वेंट देयर राम सेड
I went there. Here the reporting verb is in past tense and the reported speech also in past tense. So we can write Rama said that he had gone there. देख ये जेहेतु आमर ये रिपोर्टिंग वर्बटा अच्छी रिपोर्टिंग वर्बटा पास्ट टेंस अच्छी सिंपल पास्ट अच्छी एवं रिपोर्ट स्पीचटा सिंपल पास्ट अच्छी तार रिपोर्ट स्पीच सिंपल पास्टा चेंज हो कौन पास्ट परफेक्ट को चेंज हो देन रूल नंबर 4 इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स एन एक्शन दैट इज यूनिवर्सली और हैबिचुअली ट्रू the verb of the reported speech should remain unchanged. ଯେତେବେଳେ ଆମର रिपोर्ट स्पीचटा गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ बा हाबिचुअल ट्रुथ बुझेब जहाँ अभ्यासगत हो बा सार्वजनीन सत्य हो बुझेब सेतेबेले भर्बर कौनसी चेंज हब नाही बा अनचेंज्ड रहिबो. For example, the teacher said, oil floats on water. देख पिले ये टीचर सेट रिपोर्टिंग भावटा पास्ट टेंस अच्छी ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर पानी रे तेल भासे यह एक साइंटिफिक ट्रुथ बा यूनिवर्सल ट्रुथ तेणुक यही रिपोर्ट स्पीच टेंस रे कौन परिवर्तन घटो ना केवल सिंपल द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ये लिखा जाओ. रूल नंबर 5 in indirect narration shall and will should be changed according to the rules for the use of shall and will. देख ये shall and will चेंज हेबे तांकर नियम अनुसार. देख ये गोटे अच्छी एग्जांपल अच्छी राम सेज आई शैल गो टू कलकत्ता. ये कौन हम रिपोर्टिंग भर्ब अच्छी प्रेजेंट टेंस रे रिपोर्ट स्पीच अच्छी फ्यूचर टाइम रे. सो वी कैन राइट राम सेज दैट ही विल गो टू कलकत्ता. आई पाई ही आसला सब्जेक्ट रूप तापर आसला ही अनुसार ही पुरुष वचन अनुसार विल आमे जोग कले तापर गो टू कलकत्ता तापर वाक्य शेष. ये आमे विल शैल नियम अनुसार आमे पुरुष वचन अनुसार अप्लाई करिया को पड़ियो. देन 6 नंबर रूल when the reported speech is an interrogative sentence the reporting verb say or tells should change into ask or inquire followed by the conjunction whether or if. जेतेबेले रिपोर्ट स्पीचटा प्रश्नवाचक वाक्य थाए सेतेबेले आमे कौन करिवा ना टेल आ से को आमे उठेई देई आमे कौन यूज करिवा वेदर किंबा इफ आमे व्यवहार करिवा. देखो एग्जांपल अच्छे ये डायरेक्ट स्पीच है कौन ही सेड टू मी आर यू वेल. देख ये ही सेड टू मी रिपोर्टिंग भर्बटा अच्छी सेड पास्ट टेंस अच्छी तापर रिपोर्ट स्पीचटा कौन अच्छी गोटे क्वेश्चन वाक्य अच्छी बा गोटे प्रश्नवाचक वाक्य अच्छी. ये क्षेत्र में आम सेड उठीज एवं कौन हो आक्ट हो कौन हो ही आक्ट मी टू उठीज तापर आम वेदर कि इफ लगेगा जानचे ये इफ लगे दैट लगे ना इफ ये यू पाई आई आसला तापर आर पाई वाज आसब तार वेल
प्रश्नवाचक वाक्य थे आम आसर्टिव सेंटेंस टाइप लिखा पड़ो इफ और वेदर पर आग सब्जेक्ट तापर सब्जेक्ट पुरुष वचन अनुसार तापाई पास्ट टेन्स बी भर्ब भर्ब चेंज आसो तापर जहाँ अच्छी लिखा तापर वाक्य शेष तापर नंबर 7 if the reported speech is in imperative mood the reporting verb should be changed into order or request जितेबले रिपोर्ट स्पीचटा आमर इम्परेटिव वाक्य थी से सेन्स अनुसार आम ऑर्डर लगे पार ना रिक्वेस्ट लगे पार यदि ऑर्डर प्रकाश पाउची बा आदेश प्रकाश पाउची आम ऑर्डर लगेबा यदि अनुरोध प्रकाश पाउची आम रिक्वेस्ट मध्य लगे पारिबा फॉर एग्जांपल देख पिलेटी राम सेड टू हिज सर्वेंट गो देयर एट वंस देख ये गो देयर एट वंस है कौन रिपोर्टेड स्पीचटा राम ता सर्वेंट रू कहूँ सेटा थरे जाओ ये ऑर्डर हम जेहेतु मालिकता सर्वेंट को कौन कर ऑर्डर कर आदेश दब ये कौन हम आपको लिखे आईएस करवा राम ऑर्डर हिज सर्वेंट टू उठी ये टूटा आसो कौटी सीधा आसो ये जो कंजक्शन दैट लगुच से जगह को आसो दैट लगे ना टू गो देयर एट वंस ये भाव आम इम्परेटिव मूड रे आम वाक्य को लिखिपर रिक्वेस्ट तो अनुरोध कराऊँ राम सेड आउ एग्जांपल गोपाल सेड बी क्वेट सेड टू देम राम सेड टू देम हो बा सेड टू यू हो कि असुविधा ना आम कौन लिखा आपको आईएस कले गोपाल सेड टू बी क्वेट सेड टू बी टू आमर ओही अच्छी आम लिखला बेले आईएस रे कौन हम गोपाल सेड टू बी क्वेट इटा रिक्वेस्ट अच्छी जेहेतु सेड न लिख रिक्वेस्ट लिखा गोपाल रिक्वेस्टेड टू बी क्वेट गोपाल रिक्वेस्टेड टू बी क्वेट नंबर 8 when let occurs in the direct speech so as to express a proposal let should be changed into should and the reporting verb should be changed into propose देखो गोटे एग्जांपल देखा ये राम सेड टू मी लेट अस गो देयर टुमोरो ये रिपोर्टिंग वर्ब अच्छी सेड अच्छी पास्ट टेंस अच्छी ये रिपोर्ट स्पीच लेट रु आरंभ होती लेट अस गो देयर अच्छी राम मते कहला आसंता काली सेठा को चल जिबा ये आईएस लिखले कौन हम ना राम प्रपोज्ड ये जे प्रपोज माने से प्रस्ताव दौची लेटस प्ले आस खेलिबा ये तो प्रस्ताव दिया होची लेटस गो प्रस्ताव दिया जावाई प्रस्ताव दिया होची सेठी कौन हम ना राम प्रपोज हो कौन हो सेटा उठिकी प्रपोज्ड दैट कंजक्शन लगिला ये अस वी होगला वी शुड हम वी शुड गो द नेक्स्ट डे लेट थिले आम वी पाखे शुड लगे शुड गो द नेक्स्ट डे ये आम नियम तो पढ़ले आपको नहीं आम कि नेक्स्ट क्लास रे आम कि अधिक एक्सरसाइज करवा पिले माने या मन रखी आसो थैंक यू।